Good morning, students. Last time we had finished up to activity 5 in your Gujarat board textbook. So now we shall move further. We had done battle in the jungle part 2, right? The battle between the insects and the birds and the animals. Now activity 5. The animals quarreled about who was the smartest and the strongest. They had different opinions and your classmates will too, right? आप कभी क्लास में बैठे होंगे और क्लास के बीच में अगर ये बातें हो रही होंगी तो उसमें भी आपके डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं. Who do you think was the smartest? The lion who prepared his army well or the parrot who tricked the animals? आपके हिसाब से कौन था? पैरट स्मार्ट था, राइट? बिकॉज उसने कोई आर्मी का प्रिपरेशन नहीं किया था बट फिर भी वो जंग जीत गया, आर्मी ये बैटल जीत गया. Who do you think is the strongest? The elephant who can lift a tree or the bee who can win a battle with a sting? अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द बी ओनली बिकॉज स्टिंग से वो पूरा बैटल जीत गई है. एलिफेंट की स्ट्रेंथ लगाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो आपकी अकल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रादर देन योर स्ट्रेंथ, राइट? सो योर इंटेलेक्ट विन्स अगेंस्ट योर स्ट्रेंथ. डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स और ग्रुप्स टू फाइंड आउट योर क्लासमेट्स आइडियाज़, राइट? यू हैव टू फाइंड आउट योर क्लासमेट्स आइडियाज़ बट एटलीस्ट अपना आइडिया आप लिखो बिकॉज क्लासमेट्स तो अभी आप क्लास में मिलते नहीं हो. ऑनलाइन टीचिंग इज़ गोइंग ऑन. सो राइट डाउन योर ओन आइडियाज़ हियर. हु थिंक्स द लायन इज़ द स्मार्टेस्ट? आपको लगता है कि वो स्मार्टेस्ट है? अगर नहीं तो राइट डाउन नो. देन हु थिंक्स द पैरट इज स्मार्टेस्ट? इफ़ यू थिंक दैट द पैरट इज स्मार्टेस्ट देन राइट डाउन येस. Who thinks the elephant is the strongest and who thinks the bee is the strongest? Yes, if you think the bee is the strongest, write yes. If you think the elephant is strongest, then write yes or no. Okay. Further, if a small bee can be, these are all opinion based questions, so इसमें आप अपना opinion का आंसर लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है सबसे डिस्कस करना या सबका ग्रुप ओपिनियन लेना. Now further, if a small bee can be stronger than a large elephant, then what does the word strong really mean? For example, if the elephant is strong but the bee is stronger, what can a stronger person do that a strong person cannot? Discuss these ideas with your classmates. After discussing, decide together what it really means to be smart or strong, right? So what is the idea of being smart or strong is, so that you can discuss or else write down your own opinions, that is fine. Record your group's ideas here. Our group thinks smart means, you can write down the idea over here. Our group thinks strong means, who is strong? Who can use his intellect and win battles like the bee, right? Find out what your classmates said. Are there different opinions about what it means to be strong or smart? Choose your favorite explanations and write them here. According to you, what smart means and strong means, write down this. Just ignore this because this is not possible as there won't be any group discussion. Now let us move on to activity 6. There are many amazing animals in the world, but many animals are in danger of extinction. Extinction मतलब अंडरलाइन करो extinction को, मतलब उनका जो ब्रीड है, उनका जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म होने वाला है अर्थ के ऊपर से. ऐसी सिचुएशन में काफ़ी एनिमल्स है. फॉर एग्जांपल हमारा बंगाल टाइगर या जो नेशनल एनिमल है हमारा, वो इट इज़ ऑल्सो इन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ओनली 1100 टाइगर्स एज पर सम सर्वे 1 or 2 years बैक, ओनली 1100 टाइगर्स वेर लेफ्ट आउट इन इंडिया. सो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. सेम वे आवर एशियाटिक लायन जो गिर फॉरेस्ट की गिर सेंचुरी में है, दैट इज़ द एशियाटिक लायन. उसका भी ऐसा ही है, दैट इज़ इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़. जो स्पीशीज़ कम्प्लीटली अर्थ के ऊपर से ख़त्म होने वाली है उसको एंडेंजर्ड बोलते हैं या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बोलते हैं, कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है. मतलब उनके जैसा कोई दूसरा एनिमल फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा कुछ साल के बाद अगर इनको अभी प्रोटेक्ट नहीं किया तो, राइट? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्शन. When animals are extinct, they no longer exist on earth. Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. Endangered species उनको बोलते हैं या animals बोलते हैं. Some of these endangered animals live in India.
वन इज़ कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज़ वेरी रेयर. पर्पल कलर का फ्रॉग है, इंडिया में रहता है एंड इट इज़ वेरी रेयर, बहुत मुश्किल से दिखता है. द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स आपको पता होगा, एसएस में शायद पढ़ा होगा आपने कि इट इज़ अ माउंटेनियस एरिया इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट. यहाँ पर ये फ्रॉग मिलता है. द पिक्चर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इट इज़ पर्पलिश कलर फ्रॉग. ओके, दिस अनयूजुअल को अंडरलाइन करो. प्लेस हैज़ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सवानाज, पीट बॉग्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स. फ्रेश वाटर वेटलैंड्स है. वेटलैंड्स मतलब जहाँ पे ज़्यादातर गीली मिट्टी रहती है, बारिश ज़्यादा होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेटलैंड. माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सवानाज मतलब ग्रासेस होते हैं बड़े बड़े, उनको सवानाज बोलते हैं. बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वेराइटी, इट इज़ होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. इतना सब वेराइटी है, इसलिए काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं. यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट इकोसिस्टम इन योर एसएस सब्जेक्ट, राइट. इकोसिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल या प्लांट ये हो जाता है, एक्वेंट हो जाता है और उसी इकोसिस्टम के अंदर वो रह सकता है, सर्वाइव हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम, राइट. सो ऐसे जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं. वन ऑफ दीज एनिमल्स, द पर्पल फ्रॉग, वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड. अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है. रिसेंटली और डिस्कवर दोनों को अंडरलाइन करो. Although local people knew about the frog, scientists only discovered it and realized it was a new species in 2003. 2003 में डिस्कवर हुआ ये. साइंटिस्ट को ये मालूम नहीं था, बट वहाँ के लोगों को मालूम था. बट अगर लोगों को मालूम होता है तो भी वो क्या होता है कि उसका नोमेनक्लेचर नहीं होता, मतलब उसका नाम नहीं होता साइंटिफिक डिवीजन में, राइट. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस बाय नोमेनक्लेचर. तो वो नोमेनक्लेचर तभी होता है जब साइंटिस्ट को ये न्यू ब्रीड का पता चलता है. द फ्रॉग बरोज मतलब इस सॉइल के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड, एंड ईट्स टर्माइट्स. टर्माइट्स मतलब वाइट एंड्स, उधई बोलते हैं गुजराती में उसको. वाइट एंड्स होती है, ये आकर के वुड खा जाती है. वुड का जो भी बना हुआ होता है आपके घर में वो पूरा खा जाती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट एंड्स, राइट. और ये जो हमारा फ्रॉग है वो ये वाइट एंड्स को खाता है. तो इसका मतलब अगर टर्माइट आपके घर में है और ये फ्रॉग अगर होगा तो दे विल कीप ईटिंग दीज टर्माइट्स. It's called the purple frog, the Indian purple frog or the pig nose frog. Pig nose frog ये उसका नाम है. It has got a nose which is of the shape of a pig face, right. That is why it is also called a pig nose frog. Different names for the same animal can be confusing होता है एक ही animal के different names. So scientists give animals and plants scientific names, right. साइंटिफिक नेम्स उनको दिए जाते हैं. मैंने आपको जैसे बताया नोमेनक्लेचर होता है, एक कंप्लीट डिवीजन सिस्टम है जिसमें होल जितने भी एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स सारे एक नोमेनक्लेचर में एक डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है, राइट. सो वो कब होता है, साइंटिस्ट उसको करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड, उसका साइंटिफिक नेम के हिसाब से सब में डिवीजन होता है. द साइंटिफिक नेम फॉर पर्पल फ्रॉग इज़ Nasica batrachia hydranus, right. This is a very odd name because it is combining several things together and it is the scientific name of this frog. It is a long name, but the name is usual for scientists because all scientists know this one name is for this one kind of frog. ये एक frog का ही ऐसा नाम है, ऐसा उनको पता है. Now एक्टिविटी 7, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट. डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमें पता है. अब डायनासोर्स हमारी लैंड पे नहीं है. द फ्रॉग इज़ एंडेंजर्ड. द पर्पल फ्रॉग इज़ एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड मतलब वो डेंजर में है पर अभी उसके कुछ फ्रॉग्स बचे हुए हैं, जिंदा है, राइट. अगर उनको प्रोटेक्ट किया जाए तो उनकी स्पीशीज़ को बचाया जा सकता है. सो इट कैन बी कॉल्ड एज एंडेंजर्ड. हाउ आर दीज टू वर्ड्स डिफरेंट? Use the library, internet or other people
who know about animals to find more information on extinct and endangered animals. One good source is http://archive.org. Learn about at least one animal that is new to you, so that you can share information about it with your classmates. Now here name 5 animals that are extinct. Extinct में डायनासोर्स का आप लिख सकते हो. देन एम्फियोक्सिस करके एक बर्ड था, वो भी आप लिख सकते हो. एम्फियोक्सिस इज considered as a connecting link between reptiles and birds, right? Then this dinosaurs, you can say they are becoming extinct. Then woolly mammoth are also extinct. मैमथ्स यानी बहुत बड़े बड़े हाथी थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. एंड 2 मोर यू कैन फाइंड आउट इन होमवर्क. आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स करके ढूंढोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा. सेम वे 5 एनिमल्स दैट आर एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड में तो ये आप अपना पर्पल फ्रॉग एक लिख सकते हो. उसके बाद आप लायन टाइगर भी लिख सकते हो, बिकॉज बोथ ऑफ देम एशियाटिक लायन एंड बंगाल टाइगर जो हमारा नेशनल एनिमल है, दोनों एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. उसके बाद फर्दर एंडेंजर्ड यू कैन फाइंड इट आउट जस्ट एज एक्सटिंक्ट. आप गूगल पे आपको मिलेगा. सो 2 names यू जस्ट फाइंड इट आउट फ्रॉम गूगल. just type extinct animals and endangered animals so that you will get the link, right? Compare your list with your classmates list. Compare means to look carefully at their list and yours to find out how the lists are the same or different. Find an animal on the classmates list that is not on your list. Take your classmate to tell you about that animal. Ask your classmate to tell you about that animal. जो भी उसने फाइंड आउट किया होगा वो. बट नाउ यू डोंट हैव एनी क्लासमेट्स टू कंपेयर इट, सो लेट अस क्रॉस आउट दिस एक्टिविटी. ये आप करो. फाइंड आउट 2 more animals which have become extinct and 2 more animals which are endangered. Further, activity 8, the purple frog is larger than many other frogs. It has a very fat body and short stout limbs. Stout मतलब strong limbs होते हैं, एकदम swelly भरे हुए. Males are 60% smaller than females. The small head seems too short for the body and the firm snout sticks out in a small white knob. उनका snout होता है मुंह, इसीलिए pig snout बोलते हैं उसको, pig face. स्नाउट जैसा, पिग जैसा उनका स्नाउट, मुँह आगे का मुंह ऐसे ये स्नाउट फॉर्म में होता है, राइट? सो जस्ट अंडरलाइन द वर्ड स्नाउट. द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फर्म स्नाउट स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल वाइट नॉब. नॉब को भी अंडरलाइन करो. नॉब यानी एक छोटा सा डॉट जैसा होता है जिसके ऐसा वो उनका फेस होता है. The purple frog has a shovel-shaped bump on each back leg. Shovel-shaped bump होता है मतलब ऐसे फूला हुआ होता है उनका leg. Shovel-shaped bump on the each back leg and rounded toes on the webbed feet. Webbed feet को अंडरलाइन करो. webbed को अंडरलाइन करो. webbed मतलब उनके जो फिंगर्स होते हैं, नॉर्मली हर फ्रॉग के फिंगर्स ऐसे होते हैं, राइट? ऐसे ऐसे होते हैं तो, और बीच में ऐसी स्किन होती है. दिस इज़ कॉल्ड वेब्ड फीट, राइट? तो उनको वो ऐसा पंजा रख के वो जंप करने को हेल्प करता है और पानी में उनको तैरने के लिए भी मदद करता है. वेब्ड फीट फॉर डिगिंग. डिगिंग यानी खोदना और अंदर घुस जाना बरों के अंदर. द स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स के लिए डिग करता है और उसमें से इंसेक्ट्स निकाल के खाता है. द स्मॉल क्लियर ब्लैक eyes are above the narrow mouth. The frog's mouth is only large enough to eat small insects like termites. The frog's favorite food, right? Termites को favorite food है frog का, उसको निकाल के खाने के लिए उनका snout like mouth काम आता है. The small favorite को underline करो. टर्माइट्स तो हम पहले कर चुके हैं. दे आर द वाइट एंड्स.
The small rounded tongue sticks out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. The tongue has a round tip and the frog has no teeth, right? It does not have a teeth. It does not have any teeth. The tail is light brown with dark brown patches. The smooth skin is dark purple on the back that fades to grey on the belly. Fades मतलब पर्पल, डार्क पर्पल होती है ऊपर और नीचे जाके फेड हो जाता है उसका कलर, मतलब लाइट हो जाता है, ग्रे कलर का दिखता है ऑन बेली. बेली यानी पेट उसका जो होता है, राइट. Now we have done up to activity 9. It is just explanation and these type of extinct animals and endangered species and all. So finish this in your textbook itself. We have underlined the words somewhere, so please write down all those words in your notebook as hard words and learn the spellings, memorize the spellings. Right here also I have marked the words, so write down all those words and learn the spellings. And from activity 9 we will do next time. We stop here today.